तो जी एएस का हमारा टॉपिक है, ये अकाउंटिंग का टॉपिक का नाम है जी पार्टनरशिप चेंजेस. Partnership changes includes 3 topics in it, which we need to cover in this particular session, and it includes 3 topics which I want to write it down also. Topic number 1 is admission of a partner. The first topic is admission of a partner. When a new partner is going to join the business, then how is going to be the treatment of that admission in accounting? We will study about this in this topic. Then the next topic is retirement of partner. Sometimes it can also be treated or death of a partner because they have the same treatment. Retirement or death of a partner is going to have the same treatment. And number 3 topic, which is very important, that is profit and loss sharing arrangements. Profit and loss sharing arrangements. Profit and loss sharing arrangements. सबसे पहले हमारा टॉपिक इसमें जो आता है वो आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का है. और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में कौन सी चीजें इफेक्ट होती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. उसमें नंबर 1 आपका आता है जी, whenever a new partner is going to enter into the business, he has to bring some capital into the business. So number 1 thing which is going to be affected because of the admission, that is capital, because the person who is going to enter into the partnership business as a new partner, he has to bring some capital into the business. Normally it's not a compulsion, but normally he used to bring some capital into the business, his contribution towards the business. The second thing which is going to be is goodwill, and the number 3 is basically revaluation. So capital, we have already studied that what is capital. Amount invested by the owner of the business is called capital. When the new partner is going to enter into the business, whatever contribution he is going to make into the business, that is basically called capital, right? And the entry for capital is the same as we are used to do cash debit or bank debit, and capital is going to be credited. But here new partner capital account is going to be credited. So you can pass the entry that bank is going to be debited and new partner capital account will be credited in this part. Admission of a partner हमारा पहला टॉपिक है जो हम करेंगे. दूसरा हमारा है जी रिटायरमेंट का, और तीसरा हमारा है इसका जी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट का. एडमिशन के अंदर 3 चीजें इफेक्ट होती हैं. एक कैपिटल है, because whenever a new partner enters into the business, he has to brought his contribution into the business, that is called capital. Second is goodwill. Goodwill is going to be affected, and number 3 is revaluation. So we will start from goodwill basically, that what is going to be the treatment of goodwill and how what is goodwill actually. Let's do it, and I will go towards my book again. First of all, you should be able to know that if there is no agreement between the partners, then Partnership Act will prevail. Partnership Act 1932 or Partnership Act 1860 भी कहते हैं इसको, will be prevail, and the provisions or conditions of this Partnership Act basically says that all partners are entitled to contribute equally in the business. There will be no interest on capital, there will be no interest on drawings, salaries will also not be there, profit and loss are shared equally. और एक आपको इसमें और लिखना है जो मैंने नहीं लिखा था, वो है interest on loan will be at the rate of 5%. Interest on loan will be at the rate of 5%. जी बिल्कुल, जो पार्टनर लोन देता है उसी की बात कर रहा हूँ. इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एट द रेट ऑफ 5%. वो आपको लेना पड़ेगा, चाहे आपको क्वेश्चन उसने बताया हो या ना बताया. अगर लोन मौजूद है कि पार्टनर ने लोन दिया है तो आपको 5% उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. In any case, so if there is no agreement between the partners, yani if there is no partnership deed between the partners and they are still going to join partnership together,
then their profit and loss are going to be shared equally. Equal contribution of capital will be entertained in the business. There will be no interest on capital, no interest on drawings, no salaries will be paid, and profit and loss are to be shared equally. But if any partner has given a loan to the business, he will entitled for an interest on loan at the rate of 5%. Appropriation account हम already discuss कर चुके हैं. It is the continuation of income statement. It begins with the net profit and loss. It is prepared for distribution and deviance of profit between partners. Current account, it is used to complete the double entry from the partnership. Profit, loss and appropriation for partners, share of profit, losses, interest and salary हम पहले पढ़ चुके हैं. If partner do not maintain current account, the double entry for interest, salaries and share of profit will be completed in capital account. ये जरा गौर से पढ़िएगा, वैसे सवाल में आता नहीं लेकिन पता होना चाहिए. अगर हम करंट अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो वो सब चीजें जो करंट अकाउंट में हम लिखते हैं वो सब कैपिटल अकाउंट में लिखी जाए, क्योंकि हम क्या सपोज करते हैं असल में कैपिटल फिक्स्ड है, हम कैपिटल को छेड़ते ही नहीं है, चेंज ही नहीं करते. लेकिन अगर फर्ज कर लें करंट अकाउंट दिया ही नहीं हुआ, उसका मतलब है कि कंपनी बिजनेस जो पार्टनर्स जो है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं. तो सब कुछ फिर कैपिटल के अंदर ही होगा, प्रॉफिट भी कैपिटल के अंदर ही ऐड होगा, ड्राइंग कैपिटल में से ही माइनस होगी, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेल्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट चीज हमारा कॉन्सेप्ट आता है जो कि एडमिशन का कॉन्सेप्ट है. Whenever a new partner is going to admit into the business, the first thing which is going to be treated is basically goodwill. Now, what is goodwill? Goodwill is an intangible, non-current asset of the business. It's an intangible asset. Intangible का मतलब है जिसे आप छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते. I have my own goodwill, which has been created. It is a perception in the mind of the customer, which may be because of the quality of teaching. It may be because of the loyal customers. Brand image हो सकता है आपका, quality of product हो सकती है, morale of employees हो सकता है, motivation of skilled employees हो सकते हैं, good location हो सकती है. ठीक है, ये सब reasons हो सकते हैं goodwill की. Goodwill क्या होती है? साख, reputation of the business. Reputation of the business is called goodwill, and reputation of business can be created because of good years of trading. ठीक है, and but गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है. इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट कैन नॉट बी टच्ड एंड नॉर्मली नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में गुडविल को हम इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट शो नहीं करते. लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, उसके बाद इस पे बात करते हैं. गुडविल कैन बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है जी, आप कहते हैं जी मैं KFC में खाना खाना पसंद करता हूं, BFC में नहीं, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज यू बिलीव दैट दे हैव बेटर क्वालिटी. क्वालिटी एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उनके एम्प्लॉय सर्विस आप देखते हैं कि मुंदू खान की सर्विस बहुत अच्छी है, आप चाहते हैं कि वहां पे खाना खाया जाए बिकॉज ऑफ द सर्विस अवेलेबिलिटी ओवर देयर. रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स, लोग ज्यादा वही जाते हैं, कस्टमर ज्यादा रिटेन करते हैं, ये वजह हो सकती है गुडविल की. बेटर सेल्स और फ्यूचर इन फ्यूचर ईयर्स, अगले सालों में आप प्रोस्पेक्टिव ये है कि अगले सालों में बिजनेस क्या होगा, मजीद डेवलप करेगा, तो वो भी गुडविल के क्रिएशन की पता. एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ हैवी कैपिटल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी उसका रीजन हो सकता है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से मुराद क्या है कि आप देखें कि अब गाड़ियां जितनी भी आ गई हैं वो ज्यादातर अब लोग जो है 4-व्हील ड्राइव पसंद कर रहे हैं. सिविक वगैरह को उन्होंने आउटडेटेड कर दिए, उसमें MG हो गई है या किया स्पोर्टेज आ गई है, या और एक और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी है, MG के अलावा किया स्पोर्टेज के अलावा एक और भी है, टूसन क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, टूसन आ गई है. ठीक है ना, तो वो अब क्या है कि क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा है, स्पेशियस हो जाता है, 4-व्हील ड्राइव्स आ गए हैं, तो लोग उसकी तरफ एडमायर हो रहे हैं. तो ये सब गुडविल के रीजंस बन सकते हैं. लेकिन गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते बिकॉज गुडविल इज बेसिकली अगेंस्ट 2 काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स. 2 काउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है गुडविल. और पहला काउंटिंग कॉन्सेप्ट ये है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. क्या आप बता सकते हो कि ग्रीन हॉल की गुडविल कितनी है? नहीं बता सकते, अमाउंट में तो नहीं बता सकते. Yes, you can say this that Green Hall usually appoint very good teachers, very quality teachers, and normally students are going to be satisfied by going there. But the amount of goodwill you can't measure it. उसकी पैसे नुमाइश नहीं कर सकते. हाँ, ये हो सकता है जब मैं कहूँ इरफान साहब से, इमरान साहब से, मैं कहता हूँ रानदीप साहब से कि सर मैं आपकी एक फ्रेंचाइज परचेज करना चाहता हूँ, आप बताएं कितने पैसे लेंगे? उन्होंने कहा 10 करोड़ रुपया तो फ्रेंचाइज की कॉस्ट आनी है और 2 करोड़ रुपया हम अपनी गुडविल का लेंगे आपसे. ये वो गुडविल है जिसको हम रिकॉर्ड
कर सकते हैं क्योंकि उसकी अमाउंट हमें पता है। अभी जब गुडविल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज गोइंग टू एडमिट इनटू द बिजनेस, द गुडविल व्हिच हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, जो पिछले पार्टनर से पहले से बनाई हुई है गुडविल, उसकी वैल्यू पता नहीं है कि वो कितनी है। दैट इज नोन एज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। क्या कहते हैं? इंटरनली जनरेटेड गुडविल। इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं इसको, इनहेरेंट गुडविल, तो पीछे से आई है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। और उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसकी मनी वैल्यू में एग्जैक्ट है ही नहीं। जब तक आप अपना बिजनेस बेचेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कितनी वैल्यू मिलती है आपको ऊपर? ठीक है जी। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। गुडविल इज ए फ्यूचर प्रॉफिट। हम अपने बिजनेस को सेल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने पैसे ऊपर मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो फ्यूचर प्रॉफिट है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। पोल्का और बॉल्स के अंदर मर्जर हुआ था, पोल्का और बॉल्स का मर्जर हुआ था। पोल्का वाज एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान और उसकी आइसक्रीम बड़ी बिकती थी। आप लोगों को याद होगा, हमारे दौर की बात है शायद, जैसे हमारा दौर भी इतना पुराना नहीं है, तो ये 36-32 साल के करीबी है, ज्यादा एज तो है। तो क्या कह रहे हैं उसको हम, क्या कहते हैं कि पोल्का ने वॉल्स ने पोल्का को मर्ज किया, तो वॉल्स ने पोल्का के एसेट्स के पैसे भी दिए और उसके अलावा 5 करोड़ रुपए गुडविल का भी पे किया जो उन्होंने पाकिस्तान में बनाई हुई थी, क्योंकि पोल्का का नाम खत्म हो गया और वॉल्स ने टेक ओवर कर लिया था उसको। तो 5 करोड़ पैसे उसने उसके भी पर लिए थे गुडविल। लेकिन ये है परचेज गुडविल, जो गुडविल ऑलरेडी क्रिएट की होती है, जिसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं। जैसे कि ग्रीन हॉल की गुडविल है, अपना ये बेचते तो है ही नहीं, ग्रीन हॉल का नाम तो सेल नहीं कर रहे ना किसी को, सब जगह अपने भाई बिठाए हुए हैं। कोई खोलते हैं ब्रांच तो खुद ही खोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसे इनहेरेंट गुडविल कहेंगे, और उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, उसी को एग्जैक्ट मनी वैल्यू नहीं है। दूसरा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, फ्यूचर प्रॉफिट है। भाई गुडविल तो तब आपको मिलेगी ना जब आप बेचेंगे अपने ग्रीन हॉल के नाम को, नाम तो बेच ही नहीं रहे आप, तो आपके पास है, किधर है पैसे? तो आपके पास नहीं है ना। तो फ्यूचर प्रॉफिट है, और फ्यूचर प्रॉफिट को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। अब जब नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हुआ तो हमने नए पार्टनर से कहा कि भाई कितने पैसे लेके आओगे आप बिजनेस के अंदर? उसने कहा जी मैं 2 लाख रुपया कैपिटल का लेके आ रहा हूं, दैट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। और हमने उसे कहा कि हमने जो गुडविल क्रिएट की हुई है, हम दोनों ने, मतलब फर्स्ट सपोज करें देयर वर 2 पार्टनर्स together who were running the business previously, and now another new partner has entered into the business and he has made his contribution in the form of capital towards the business. But the old partners ने कहा उस नए पार्टनर को कि भाई गुडविल के पैसे भी लेके आओ। उसने कहा भाई किस चीज की गुडविल के पैसे? उसने हम ओल्ड पार्टनर ने कहा कि हमने 5 सालों से बिजनेस को चलाया है, इसका एक नाम बनाया है, उसके बदले तुम हमें कितने पैसे दे? उसने कहा दिखाओ गुडविल किधर है, हम तो गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे बुक्स में। तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है, इट मींस पार्टनरशिप इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज़ नाउ there are no two partners, there will be 3 partners, and then there will be 3 partners, तो उनकी प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप दोनों पहले प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे थे 2:1 में, सरमत नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होगा तो रेशियो बदल जाएगी ना आप सबकी, क्योंकि उसको ऐसा बिल देना पड़ेगा आपको। इट मींस पार्टनरशिप जब चेंज होती है तो आप समझ लें कि नई पार्टनरशिप डेवलप होगी। तो गुडविल हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड पहले करेंगे। सर क्यों रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में रिकॉर्ड? क्योंकि हम 2 पहले पार्टनर्स गुडविल को रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे सर? क्योंकि वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थी। हमने 5 सालों से बिजनेस चल रहा था, हमारा गुडविल भी थी, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करते इसको क्योंकि वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, मनी मैनेजमेंट के और प्रूडेंस के। अब नया पार्टनर जब एडमिट हो रहा है बिजनेस के अंदर, उसको ये दिखाने के लिए कि हमारी जो गुडविल के पैसे हैं वो भी हमने बनाए हुए, आपको गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर खत्म करना पड़ेगा। सो यू विल रिकॉर्ड द गुडविल फर्स्ट एंड देन यू आर गोइंग टू राइट ऑफ द गुडविल। सर हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब उन्होंने खरीदी है। देखो जब पार्टनरशिप में नए बंदे ने एंटर होना है तो क्या आपको उसको दिखाना नहीं है कि आपके असल कैपिटल कितने हैं? असल कैपिटल आपके गुडविल को मिला के हैं, तो गुडविल की अमाउंट आपने शामिल नहीं की हुई। क्यों? तो गुडविल का बुक्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट था, मनी मैनेजमेंट के प्रूडेंस के। लेकिन अब आपको उसको दिखाने के लिए रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि उसको एक्चुअल सिचुएशन पता चले कि बिजनेस कहां स्टैंड कर रहा है और आप दोनों के कैपिटल कहां स्टैंड कर रहे हैं। तो देखते हैं हम
हम कैसे उसकी एंट्री पास करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले फर्ज कर ले गुडविल 9000 की है, सामने लिखा हुआ है, और दो बंदे थे जो कि ओल्ड पार्टनर्स थे, ए और बी। पहले हम गुडविल को डेबिट करेंगे। गुडविल हमारा क्या है? मैंने बताया था अभी, नॉन करंट एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, जिसे आप छू नहीं सकते, है तो एसेट। जब अपनी बुक्स में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं हसन, तो आप एसेट को डेबिट करोगे। एसेट को डेबिट करोगे कि आपका एसेट बन गया है। सर पहले भी तो एसेट था, बिल्कुल था, लेकिन पहले आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। तो सर आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नया बंदा बिजनेस में एंटर हो रहा है, उसको भाई हमने बताना है कि भाई हमारे पास कितनी पावर है। हमारे पास ये वाली पावर भी मौजूद थी गुडविल की, जो हम शो नहीं कर रहे थे, तो हम गुडविल को डेबिट करेंगे। इट इज नॉन करंट एसेट ऑफ द बिजनेस एंड द अमाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड इनटू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी in their profit sharing ratio, and in this case the profit sharing ratio is old ratio between them was equal. तो नौ कितनी की गुडविल थी हसन? 9000 की। वो गुडविल के पैसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इक्वली, 4500 4500, और उनके कैपिटल 4500 से क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। उनकी अमाउंट, कैपिटल की अमाउंट बढ़ गई है। किसको दिखाने के लिए? नए पार्टनर को दिखाने के लिए कि हमारे कैपिटल 4500 से ज्यादा है असल में। और अब हम असल पोजीशन शो कर रहे हैं जी। गुडविल की वैल्यूएशन का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एक अलग चैप्टर है पूरा, जिसके अंदर 3 मेथड्स हैं। जैसे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक कहते हैं, एक को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक को हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इट इज ए सेपरेट चैप्टर, लेकिन वो आपके कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट पहले से दी हो, पहले से मेंशन हो। अदरवाइज जो हम पढ़ाते हैं एमबीए क्लासेस में, अगर क्लासेस लेता था पहले, मैं अब तो नहीं पढ़ाता, बीकॉम वगैरह को, उसमें वैल्यूएशन गुडविल के चैप्टर मौजूद है, जिसमें हम ये मेथड्स पढ़ते थे, व्हिच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही है ना उसके अंदर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, तो 9000 को हमने डेबिट किया। अब क्या हो रहा है हसन? एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे क्या हो गए? कैपिटल अकाउंट बढ़ गया। सर कैपिटल अकाउंट बढ़ गया तो क्रेडिट क्यों होता है? वो अल्लाह के बंदे, कैपिटल बैलेंस क्रेडिट ही होता है। जब कैपिटल में मजीद पैसे और बढ़ेंगे तो मजीद क्रेडिट ही होगा। बी कैपिटल अकाउंट भी बढ़ रहा है 4500 से, क्योंकि दोनों की रेशियो आपस में पहले क्या थी? इक्वल थी। इक्वल रेशियो से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल उसको, उनके अकाउंट। ये एंट्री पास करने की मुझे जरूरत नहीं थी, बट आई हैव नो अदर चॉइस, because the new partner is going to enter into the business. In order to show him true and fair view of the business, in order to show him the actual position of our capitals, I have to pass this entry for the goodwill. And now in the next entry, I am going to write off the goodwill. यानी मैं गुडविल पहले रिकॉर्ड करूंगा, उसमें गुडविल खत्म कर दूंगा। सर खत्म नहीं करूंगा, असल गुडविल खत्म क्यों करूंगा? बिल्कुल सर, क्योंकि हम गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड तो करते ही नहीं है। सर किया क्यों है? और तो जबरदस्ती किया है, क्योंकि नए पार्टनर को शो करना था कि हमारी असल पोजीशन क्या है। इसलिए पार्टनरशिप चेंज का मतलब है थिंग्स आर चेंजिंग, एंड थिंग्स आर चेंजिंग मतलब है देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू पार्टनरशिप ऑलमोस्ट, बिकॉज़ व्हेन न्यू पार्टनर इज गोइंग टू एंटर द बिजनेस, पार्टनर ज्यादा भी हो गए और उनकी आपस में शेयरिंग अरेंजमेंट्स भी बिल्कुल बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए जी, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीइंस्टेटेड इन द बिजनेस। रीइंस्टेटेड का मतलब समझ आया आपको? दोबारा से शो करना उसको। हम शो करेंगे अमाउंट ओल्ड पार्टनर विद प्री चेंज रेशियो या ओल्ड रेशियो से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी 9000 और 4500। Here goodwill is 9000 and there are 2 old partners of business A and B. So this entries show the goodwill is distributed with equal ratio among partners. Now C is coming as a new partner in business. So now goodwill will be written off from business with new ratio 3:1 among all partners A, B and C. अब A, B और C के कैपिटल अकाउंट में से पैसे गुडविल के निकाल लेंगे। क्यों निकालनी है हमने आपको? क्योंकि गुडविल को हमने बुक्स में शो नहीं करना, तो कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा और गुडविल की अमाउंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट। गुडविल का एसेट डिक्रीज कर रहा है, गुडविल विल नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्रेडिट का मतलब है खत्म हो गई है, और उतने पैसे हमने कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर दिए, कैपिटल अकाउंट के डेबिट हो गए। डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, लेकिन किस रेशियो से? न्यू रेशियो से। और न्यू रेशियो क्या है? 3:1। कितनी बनेगी? 3/6, 2/6 और निकालेंगे, निकाल देखिए ये आती अमाउंट्स 9000 का 3/6, 4500, 9000 का 2/6 3000 और 9000 का 1/6 आपकी बन जाएगी 1500। अब जरा गौर कीजिएगा आगे,
ये बताएं, पहली एंट्री में अगर आप देखें, मैं शो कर रहा हूं, ए को गुडविल कितना फायदा हुआ और उसको गुडविल का नुकसान कितना हुआ 4500। इसका मतलब है ए की जो पोजीशन है वो तो बैलेंस है, जितना फायदा हुआ है उतना उसके अकाउंट में से निकल गई। बी को कितना फायदा हुआ, निकला कितना उसके अकाउंट से, इसका मतलब बी को क्या हो गया, फायदा हो गया, उसका कैपिटल अकाउंट मजीद क्रेडिट हो गया, कितने से, आगे चले। सी के कैपिटल अकाउंट में से पैसे क्या हुए हैं, निकले हैं, कितने 1500। तो 1500 सी के कैपिटल अकाउंट में से निकल गया है और बी के कैपिटल अकाउंट में चला गया। अगला सवाल, सर ए को क्यों नहीं कुछ मिला, यार गौर से सुनने जरा मेरी बात, ताकि आपको याद रहे आइंदा के लिए हमेशा के लिए। पार्टनरशिप के अंदर इस चीज का कोई जवाब नहीं उठता कि किसको कितना फायदा हो रहा है, ये उन तीनों की आपस में ताल्लुकात पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझ आई। अब हसन आप मेरे बहनोई हो, अब मेरे साथ पार्टनरशिप कर लेते हो तो यार मुझे आपकी मर्जी चलेगी ना, ठीक है ना। अब आप जितना शेयर 60-70% भी ले लो और हमारी कैपिटल इक्वल भी कंट्रीब्यूट किए हो, मैं कहूँगा यार चलो ठीक है 30% भी काफी, कोई बात नहीं हसन भाई हम चला लेंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि ऐसी मैंने एग्जांपल इसलिए जो है वो लो लेवल की दी कि आपको ये बात समझ आ जाए कि प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट का ताल्लुक किसी चीज से भी नहीं है भाई, वो तीनों की आपस में मर्जी है यार, आपको क्या तकलीफ है, किसको कितना ज्यादा है कम फायदा हो रहा है, वी आर नॉट कंसीडरिंग दैट थिंग। वो उनका आपस में रिलेशनशिप डेवलप हुआ और वो रेशो खुद से पहले से क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है। तो पहले इक्वल रेशो थी, अब 3:1 हो गई, 3/6। ए को बेनिफिट कुछ भी नहीं हुआ, बी को बेनिफिट हुआ 1500 का इजाफी, और वो 1500 कहां से आए, सी के कैपिटल अकाउंट से उतने पैसे निकल कर बी के कैपिटल अकाउंट में चले गए। अगला सवाल आपका, सर सी के कैपिटल अकाउंट में पैसे तो आए ही नहीं, वो आए नहीं। मैंने बताया था गुडविल जब एडमिशन जब होता है तो बंदा पैसे लेकर आता है, वो कैपिटल लेके आया हुआ है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेगी गुडविल की, ठीक है जी। दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। देखिए आप, इफ सी ब्रिंग्स सम कैश इन द बिजनेस फॉर गुडविल, then cash will be transferred to A and B capital account with old ratio for their already created goodwill। अब इसको जरा थोड़ा हम समझ लेते हैं, पहले आप इन एंट्रीज को देख लें एक दफा। और ये आने वाले हर सवाल में आपको करनी पड़ेगी। देखें अब क्या हुआ जी, सी ने कहा कि भाई आप पहले गुडविल को शो करोगे यहां पर जैसे किया है, फिर राइट ऑफ करोगे, दफा करो। अब ऐसा करो, मैं आपको अंडर द टेबल का मतलब होता है आई डोंट वांट टू शो इट इन द बुक्स, प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मैं आपको उतने पैसे कैश में दे देता हूं। आप जितनी गुडविल आपने बनाई ली ना, और जितना आप समझते हो कि मुझे हिस्सा डालना चाहिए, उतने पैसे मैं आपको कैश की सूरत में दे देता हूं। उसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट हो जाएगा बिजनेस में, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। किस रेशो से, ओल्ड रेशो से। उनको गुडविल के पैसे इक्वली मिल जाएंगे जो सी नया लेके आ रहा है। सपोज करते हैं सी कहता है कि मैं आप दोनों को गुडविल के 6000 रुपए दे देता हूँ, तो 6000 रुपए बिजनेस में कैश डेबिट हो जाएगा, और ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट 3-3 हजार से क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि वो गुडविल के पैसे सी डायरेक्टली ए और बी को पे कर देगा अपने हाथ से, गुडविल शो करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है भाई मैं आपको क्या कर देता हूं, अकोमोडेट कर देता हूं फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल व्हिच यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन कैश। तुम कहते ठीक है भाई ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है। उस सूरत में हम एंट्री का पास करेंगे। देखें लास्ट एंट्री 2 देखें सिर्फ, कैश डेबिट हो जाएगा 15000 से, और एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7500 और 7500 से। इस अमाउंट का पिछली एग्जांपल के साथ कोई फर्क नहीं है। इसकी आप अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं। कैसे, कैश टू सी कैपिटल अकाउंट 15000, और फिर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ए और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आप दोनों एंट्रीज को मिक्सअप करें तो सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट और डेबिट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंट्री क्या बन रही है, कैश टू ए एंड बी, एंट्री वही बन रही है। तो ए की एंट्री याद रखें, ये वाली वो काफी है। ये कैश आपका डेबिट हो गया 15000 से, ये कैश किसने दिया है, नए पार्टनर। सर इस एग्जांपल में गुडविल की अमाउंट 15,000। यस गुडविल की अमाउंट 15,000 नहीं है, वो गुडविल के जो पैसे दे रहे हैं कौन, नया पार्टनर, वो 15,000 जो उसका शेयर बनता है, और जो दोनों पार्टनर ने एग्री किया है कि ठीक है यार इतने पैसे गुडविल के दे दो, वो है। और ये जरूरी थोड़ी गुडविल के पैसे लेकर ही हमने इसको आने देना, ये जरूरी थोड़ी है। आप किसी को कैपिटल के बगैर भी पार्टनर बना सकते हैं, आप किसी को गुडविल के बगैर भी पार्टनर बना सकते हैं यार, आपकी मर्जी है, मैंने पहले बताया।
इंस्ट्रक्शन कोई नहीं है इसके अंदर। समझ आ गई बात? अब चलते हैं जी हम आगे, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, थोड़ी एक दो एंट्रीज देखकर फिर हम जो है वो एडमिशन के सवाल को कंसिडर करते हैं। आसान चैप्टर है बेसिकली पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप बेसिकली का आसान चैप्टर है, मुश्किल चैप्टर नहीं है, लेकिन इसका सवाल पेपर में बहुत ज्यादा मर्तबा पेपर में नॉर्मली जो है वो आता है, काफी ज्यादा पूछता है पेपर के अंदर क्वेश्चन। तो पहले हम एडमिशन के हवाले से ही जो है वो देख लेते हैं आने वाला। जी ये क्वेश्चन है जी, मैं इसको पढ़ रहा हूँ आपके सामने। मई जून 15-22 क्वेश्चन 10 है। मई जून 15-22 क्वेश्चन 10। मई जून 15-22 क्वेश्चन 10 और मेरा पेज नंबर भी बता देता हूँ मैं आपको 499। जी तो देखते हैं सबसे पहले जी इसको देखें। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हमें, मोटर व्हीकल इक्विपमेंट फिक्चर एंड फिटिंग। किम अ सोल ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक ही बंदा पहले कारोबार कर रहा था, उसका नाम किम था। करंट एसेट्स दिए हुए, टोटल एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटीज। कैपिटल दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ऑन 1 अक्टूबर किम एडमिटेड चैन एज ए पार्टनर। किम ने चैन को एज ए पार्टनर बिजनेस में एंटर किया है। उस डेट पर गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000 बट विल नॉट रिमेन इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप। कहते हैं गुडविल 1,20,000 की थी जो उन दोनों ने बनाई हुई थी, लेकिन कहते हैं बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी। भाई बुक्स में तो रिकॉर्ड पहले ही नहीं हो रही सर, कैसे? पीछे जाओ, दिखाओ नॉन के समय गुडविल शो हो रही है, हम तो रिकॉर्ड पहले ही नहीं कर रहे, लेकिन अब हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसे खत्म भी करेंगे। यू विल रिकॉर्ड द गुडविल एंड देन यू विल राइट ऑफ द गुडविल। प्रॉफिट वो मैं बताता हूँ जी। The profit sharing ratio was agreed at Kim 60% and Chan 40%. Chan agreed to pay a check of 1,60,000 to the partnership. In addition, he reduced equipment valued at 3,25,000 and inventory valued at 26,000. सबसे पहले एंट्री पास करते हैं किसकी बेटा? कैपिटल की। तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी वो मैं करने जा रहा हूँ आपके सामने। इधर कर लेता हूँ मैं। कैश डेबिट एंट्री, भाई एंट्रीज। कैश डेबिट कितने से होगा जी? आई एम सॉरी, कैश डेबिट नहीं होगा, चेक डेबिट होगा। कितने से? बैंक डेबिट होगा 1,60,000 से, 1,60,000। उसके बाद क्या हो रहा है जी, आगे देखते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है जी 3,25,000। ठीक है जी, ये लिख लिया हमने। उसके बाद इन्वेंट्री डेबिट हो रही है 26,000। बिजनेस में लेके आ रहे हैं ना हम, ये सारी चीजें बिजनेस में लेके आ रहे हैं। इन्वेंट्री डेबिट हो रही है 26,000। राइट हो जाएगा आपका। क्या भला कौन बंदा है जो नहीं आ रहा है? चैन। चैन कैपिटल अकाउंट। चैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। बताएं टोटल कितना आता है इसका? जी 5,11,000। ये आपके आ जाएगी जी पहली एंट्री की। बैंक डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट और चैन कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैंक एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। इक्विपमेंट एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। इन्वेंट्री अगेन एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। ये बिजनेस की बुक्स है ना। और चैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो कैपिटल के पैसे लेकर बिजनेस में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी हम। नेक्स्ट में वो कहता है गुडविल वाज वैल्यूड एट 1,20,000 एंड विल नॉट रिमेन इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप। मुझे बताएं पहले ओल्ड पार्टनर सिर्फ एक ही था मेरे भाई, तीन दो नहीं थे, एक ही था। सारी गुडविल उसने क्रिएट की हुई है तो उसकी बुक्स में ही जाएगी। गुडविल डेबिट हो जाएगा आपका 1,20,000 से
और क्रेडिट आपका हो जाएगा किम कैपिटल अकाउंट 1,20,000 से। आपने गुडविल को राइट ऑफ करना है। ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से, नाउ इट इज गोइंग टू बी राइट ऑफ अमंग न्यू पार्टनर्स विद न्यू रेशियो। तो वो कैसे डेबिट होगा जी? किम कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा आपका, चैन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा आपका न्यू रेशियो के साथ, जो है आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा इतनी अमाउंट से 1,20,000 से। हम देखते हैं 60 और 40%, 1,20,000 का 60% निकालें कितना आता है जी? 72,000। 1,20,000 का निकालें 40% तो कितना आ जाएगा? 48,000। ये हमने एंट्रीज पास की है। किम कैपिटल अकाउंट डेबिट 72,000 से और चैन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 48,000 से। अगर आप गौर करें इस एंट्रीज को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि किम को फायदा हो रहा है 48,000। 72,000 तो उसका कैंसिल हो जाएगा ना, बाकी उसका अकाउंट क्रेडिट मजीद हो रहा है कितने से? 48,000 से किम को बेनिफिट हो गया है। लेकिन हमारा काम बेनिफिट निकालना नहीं, हमारा काम एंट्रीज पास करना। वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि आपने एंट्रीज इस तरीके से पास करनी है। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमने क्या बनाने हैं? कैपिटल अकाउंट्स। तो मैं बना लेता हूं कैपिटल अकाउंट्स दोनों के। सेम चीज समझ नहीं आई कि कैपिटल और जी देखिए, सबसे पहले गुडविल को आपने क्या करना है जी? रिकॉर्ड करना है ना बुक्स में। तो गुडविल का बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के साथ। तो मैंने यही किया है, गुडविल को मैंने डेबिट किया और पार्टनर सिर्फ एक ही था। कौन था? सिर्फ पार्टनर एक था, किम। गुडविल इज अ नॉन करंट एसेट। व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द बुक्स यू हैव टू डेबिट इट, क्योंकि आप गुडविल को रीइंस्टेट कर रहे हैं बुक्स के अंदर, एज ए नॉन करंट शो कर रहे हैं। और किम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि सारे के सारे पैसे किम के ही हैं, क्योंकि पहले तो पार्टनर एक ही था, पार्टनर ही एक था पहले। सारे पैसे सेकंड में किम और चैन कैपिटल अकाउंट डेबिट होना है। वो बताता हूं ना, पहले तो कैपिटल एक ही था। अब आपने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब है गुडविल को खत्म करना है अपनी बुक्स से। गुडविल क्रेडिट हो जाएगी राइट ऑफ करने के लिए, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। और किम और चैन के कैपिटल अकाउंट न्यू रेशियो से हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि उनके कैपिटल अकाउंट में से अपने पैसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना। न्यू रेशियो कितनी है? 60% और 40%। तो 1,20,000 का 60% 72,000 के में से निकल गए और चैन में से निकल गए 48,000। अगर आप कंबाइन करो ना तो आप गौर करो, किम को 48,000 का बेनिफिट हो रहा है। किम का कैपिटल अकाउंट 48,000 से क्रेडिट हो रहा है और चैन का कैपिटल अकाउंट 48,000 से डेबिट हो रहा है। उसका कैपिटल अकाउंट कम हो गया 48,000 से और किम का बढ़ गया, उसको गुडविल के बेसिकली हिस्सा मिल गया जो उसने बनाई थी। अब हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और कैपिटल अकाउंट्स बनाने में याद रखिएगा कि हमने दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक उसका किम का भी और चैन का भी। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट्स हम वो बना लेते हैं। उसके लिए आपको याद रखना ये है कि गुडविल का जो ट्रीटमेंट होता है और रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ही होता है, because they are not created because of trading activities of the business. Goodwill is not created because of the trading activities of the business. कारोबार को चलाने से गुडविल नहीं बनी है। साख है गुडविल, ठीक है, बिजनेस की साख है, कारोबार को चलाने से नहीं बनी है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से हो सकती है, लोकेशन की वजह से, कारोबार के चलाने की वजह से नहीं है। इट इज नॉट द डेली एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इसलिए हम उसको कैपिटल अकाउंट में करते हैं, करंट अकाउंट में या प्रिपरेशन अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि वहां पर सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के नतीजे में जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हो, हम गुडविल का कारोबार नहीं कर रहे। गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो खुद ब खुद क्रिएट हुआ है, कारोबार चलाने से क्रिएट नहीं हुआ। 5 सालों की मेहनत जो रंग लाई है हमारी वो है। ठीक है जी, इधर भी मैं लिख लूंगा जी किम आ जाएगा और आगे भी मेरा आ जाएगा जी चैन। सबसे पहले मुझे कैपिटल अकाउंट लिखना है, तो किम का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, याद रखिएगा आपने एंडिंग बैलेंस उठाना है। क्लोजिंग बैलेंस 5,92,000। अब इसकी वजह भी सुन लें भाई, जो ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है ना 6 लाख, वो पिछले साल का है। इस साल के जब बिजनेस में चेंज आया, जब नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो वो साल के एंड में एडमिट हुआ है, उस वक्त इसका कैपिटल 5,92,000 था। तो आप ब्रॉड डाउन जो लिखोगे इसके कैपिटल में यू विल राइट 5,92,000 लाइक दिस। फिर क्या होगा जी? चैन के कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें क्रेडिट होनी है जी। ये देखिए किम का कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ना, ये कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट किम की है। किम में सोल ट्रेडर,
तो उसका कैपिटल कितना हमें हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में 5,92,000 ये दिया हुआ है, प्रॉफिट ऐड करके ड्राइंग माइनस करके। ये वो कैपिटल है जो उस वक्त मौजूद है जब चैन एडमिट हुआ था। 6 लाख जो दिया हुआ है वो तो पिछले साल का, इस साल के एंड में हो रहा है ना, 1 अक्टूबर 2014, और ये डेट किसकी है 30 सितंबर 2014, एक ही डेट हुई ना, 30 सितंबर 1 अक्टूबर में कोई फर्क नहीं है, तो साल के एंड में एडमिट हो रहा है यार। इसका मतलब है कि 5,92,000 कैपिटल था उस वक्त, उससे हम शुरू करेंगे ना ड्रॉ डाउन उसका। अब 3 चीजें आएंगी इसके अंदर, एक आपका आना है जी बैंक, बैंक आपका आ जाएगा जी कितना है जी कि सॉरी चैन के कैपिटल अकाउंट में 1,60,000, इक्विपमेंट आ जाएगा जी आपका 1,00,000 आपको दिया हुआ है जी कितने का 3,25,000। इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी 26,000। ठीक है जी, क्यों बना बेटा, चैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, चैन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से, इन्वेंट्री की वजह से। उसके बाद एंट्रीज किसकी आ जाएंगी बेटा, गुडविल की। गुडविल जो है वो क्रेडिट हो रहा है किम के कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट से, 1,20,000 से, और फिर गुडविल जो है वो किम कैपिटल अकाउंट और चैन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। अकाउंट में डेबिट साइड पे आपके आ जाएंगे जी कितना 72,000, और आपका आ जाएगा जी 48,000। और इसके कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, आपका जो है वो बैलेंस कैरी डाउन निकल आएगा 7,1 जी। इसका टोटल कितना आ रहा है 7,1,2,000, कैरी डाउन कितना निकालना है ना, उसका कितना आ रहा है, हाँ इधर आ जाएंगे आपके कैरी डाउन इसकी, ये कितने 72,000 माइनस करके कितना आ रहा है जी, अगले का 5,11 माइनस 48,000, 463। ओहो ठीक है जी, ये हमने कैपिटल अकाउंट्स में हमने है वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, आज हमने टॉपिक पढ़ा है, ये पिछले टॉपिक से तो बिल्कुल अलग हो गया जी, बिल्कुल। पिछला टॉपिक तो हम पढ़ रहे थे कि हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, कारोबार को चलाने के खर्चे उससे ताल्लुक था, ये कारोबार के चलाने से ताल्लुक नहीं इसका ताल्लुक है कि नया पार्टनर जब एडमिट हो रहा है तो क्या होता है, तो क्या चेंज आएगा, चेंज क्या आ रहा है, एक तो वो पैसे लेके आ रहे हैं या इक्विपमेंट लेके आ रहा है या एसेट लेके आ रहा है, दूसरा गुडविल में चेंज आ जाएगा, गुडविल जो है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी आपको ओल्ड पार्टनर में, फिर राइट ऑफ करनी पड़ेगी न्यू पार्टनर में, न्यू रेशियोस, और फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा और कैपिटल के बैलेंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि नया पार्टनर आने की वजह से कैपिटल की डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आ जाएगा। और तीसरी चीज जो होती है उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन, इसके बारे में हल्का सा डिस्कस करके अभी हम इसकी बात कम करेंगे। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, असल हम तीनों पार्टनर्स थे, आप मेरे बिजनेस में हमारे एंटर हुए और आपने मुझे कहा कि भाई तुम जो बिल्डिंग शो कर रहे हो अपनी बुक्स में, तुमने बिल्डिंग लिखी हुई है 1,00,000 रुपए की, ये तो मार्केट में 80,000 की, मैं क्यों 1,00,000 रुपए के हिसाब से पैसे, कैपिटल के पैसे 1,00,000 रुपए के हिसाब से क्यों दूं, असल में वैल्यू उसकी 80,000 है। हमने कहा अच्छा, तो हमने जो इन्वेंट्री लिखी हुई है वो शो कर रही है हम 30,000 की, वो असल में 40,000 की, ठीक है उसको बढ़ा दो। When there is going to be a partnership change, in order to show a true and fair view of the business,
the value of assets are going to change according to the commitments between the partners. यानी दोनों पार्टनर्स आपस में एक जगह पे बैठेंगे, एग्री करेंगे तो बात आगे चलेगी ना। वो कह रहा है बिल्डिंग को कम करो, मैं कह रहा हूं इन्वेंटरी को बढ़ाओ, मैंने उसकी बात मान ली, उसने मेरी बात मान ली, तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो जाएगी। एसेट्स अगर इंक्रीज कर जाएंगे तो उसको भी रिवैल्यूएशन कहते हैं, अगर एसेट वैल्यू डिक्रीज कर जाएंगे तो उसको भी रिवैल्यूएशन कहते हैं, और उस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी कैपिटल अकाउंट पर आएगा। लेकिन वो बात की बात, ठीक है जी, क्योंकि मसला ये है ना कि अगला बंदा जो पार्टनरशिप में आ रहा है तो उसने कुछ देके ही आना है ना, वो कागज नहीं आएगा ना कि असल वैल्यू मार्केट में कितनी लग रही है भाई, मैं क्यों इतने पैसे दूं। और हम भी कहेंगे कि अगर मार्केट में किसी चीज की प्राइस ज्यादा है तो भाई हम ज्यादा पैसे लगाएंगे। So everything is going to be changed. You may assume that there is going to be a new partnership with new assets, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी और कैपिटल सबके चेंज हो जाएंगे, एक तरह से नया बिजनेस ही स्टार्ट हो रहा है। तो उसे हम रिवैल्यूएशन कहते हैं कि एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज जो करते हैं पार्टनरशिप चेंज के बगैर, उसको रिवैल्यूएशन कहा जाता है। तो ये यहां तक हमने किया। अब उसने क्वेश्चन में क्या क्या आगे देखिए, कैपिटल अकाउंट ने बना लिए, उसने क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को भी कहा है बेटा। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे ये मैं आप पर छोड़ रहा हूं, मैं बना नहीं रहा अभी। वो कैसे क्या करेंगे आप देखिए, सिर्फ एंट्रीज का इफेक्ट जाएगा। अब आप कैपिटल में कितना लिखेंगे, दोनों कैपिटल आएंगे आप, चैन का भी और किम का भी, दोनों लिखने पड़ेंगे ना आपको। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट जो आप लिखेंगे उसमें किम का लिखेंगे कितना, 6,40,000, चैन का लिखेंगे 4,63,000। बैंक में 1,60,000 क्या कर देंगे, ऐड। इक्विपमेंट में 3,25 क्या कर देंगे, ऐड। इन्वेंट्री में 26,000 क्या कर देंगे, ऐड। बस बाकी बैलेंस शीट के बाकी सारे आइटम एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और बैलेंस शीट जब दोबारा बनाएंगे आप तो वापस में बराबर ही आएगी विद दीस चेंजेस। बैंक, अगर क्वेश्चन में बैंक का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो बैंक अलग से ऐड हो जाएगा करंट एसेट्स के अंदर। उसके नीचे लिखेंगे बैंक, जी मैं देख रहा हूँ, हाँ बैंक ने लिखा हो तो बैंक लिख देंगे, यहाँ पर हम बैंक खुद लिख देंगे। यानी कि देखो ना, इक्विपमेंट जो लिखा है मैंने, इक्विपमेंट जो 80,000 का है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऐड करके लिखेंगे ना हम, कितना ऐड करके आएगा। इस तरह जो इन्वेंट्री है इसमें भी ऐड हो जाएगा 26,000, ऐड करके लिखेंगे। आजा भाई, और बैंक अलग से लिखेंगे आप, करंट एसेट में ही आ जाएगा बैंक अलग से। कितनी अमाउंट है, 1,60,000। इस तरह कैपिटल आप दो लिखेंगे, एक लिखेंगे किसका, किम का, दूसरा लिखेंगे किसका, चैन का। और वो कितना कितना आ जाएगा, किम का कितना है 640 और 463। टोटल कर देंगे आपके दोनों साइड आपस में इक्वल आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए ना आपकी, इक्वल आएंगी तभी सवाल जो होगा ना हमारा। दोनों साइड्स का मतलब है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एंड करंट लायबिलिटीज। सर तो ये प्रॉफिट फॉर द ईयर में क्या रकम क्या है? क्या चीज, उससे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने जो सवाल स्टार्ट किया वो प्रॉफिट के बाद जो लास्ट फिगर है वहां से था, 592 से स्टार्ट किया हमने भाई। हमने तो सवाल स्टार्ट ही 592 से किया है, तो हमें जरूरत ही नहीं है इसको कंसीडर करने की। ओके, ये हमें क्वेश्चन करना था आज के लिए।